no use of doing this thing. Okay, so now we will move further. After this, today we will talk about the actual public key cryptography system. So for this, I am using the digital board also. Okay, so for doing this, I'm simply putting this glass board. So I'm writing something here like hello. It is visible? Hello, Yes, what sir. is? Okay, fine. Okay, okay, okay. So ये डायग्राम काफी लेंदी था, तो इसको रन टाइम पर ड्रॉ करना इट इज नॉट द गुड थिंग, तो मैंने यहाँ कर दिया. नाउ ग्लास बोर्ड करके हम इसको देखते हैं कि है होता क्या है. ओके, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, वेरी फर्स्ट थिंग, पॉइंट वाइज फाइल से, देन की पेयर. ओके, सो की पेयर मींस public key, let's say X, and correspondingly private key, say X. Any user. एक चीज जरूर दिमाग में रखिए कि आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उस सिस्टम में प्री डिफाइंड यूजर्स होंगे. फॉर एग्जांपल, इन ईसी डिपार्टमेंट, अगर ईएनसी या हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, हमारे सब्जेक्ट में सपोज 134 स्टूडेंट्स है, तो 134 स्टूडेंट्स ही इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं. ऑल दी 134 आर दी ऑथराइज्ड यूजर्स. अदर देन दिस, अनऑथराइज्ड यूजर वी विल से. तो सिमिलरली यहाँ पर जो भी की पेयर जनरेट होता है वो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए ही होता है जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ सेकंड टास्क. हियर you can easily see that dual encryption scheme is using and dual decryption process is also used. तो ये it depends then कि आप आपकी एल्गोरिदम को कितना सिक्योर बनाना चाहते हैं, how secure you want to make your algorithm. यहाँ पर आपने dual encryption किया. This is message. मैं इस message के लिए let's say M letter use करता हूँ. Plain text. This is nothing but the plain text that any source sender, say A, wants to send. And the encryption, so after here we will get something like this. Here encryption, E for encryption, and encryption of what, of say अच्छा मैसेज को जो रॉ डेटा था that is M, और जो भी आपका बिट पैटर्न बना उसको इन्होंने X बोल दिया है. तो ठीक है, हम यहाँ पर X ही यूज कर लेते हैं फिर. ओके, सो encryption will be like this, X, and अब देखो encryption of the message X with the help of key, इसको इस तरीके से लिखते हैं. So this is nothing but private key of A. So you will get from here. So this is the Y actually. So Y is what? Y is nothing but encryption of message with respect to the private key of source A, and this is possible case because source A can have the private key of himself or herself, no issue. Okay, यहाँ पर आप की पेयर सोर्स देख रहे हैं. This is the source. Definitely key आप whether it is public key, private key, or in symmetric case a single key, somewhere you have to generate these keys. This key pair source, again, it might be same for, not might be, but it will be same for both the end, encryption and the decryption end, because only then you can generate the corresponding key pairs, private and public pair. So this is key pair source, और इसने जो private generate किया key A का, that is वो यहाँ पर आ गया, इस encryption algorithm को दे दिया गया है. I'm not writing here. अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पेयर के लिए. So PRA is nothing but private key, right hand side, private key of source A. Now similarly
PUA is the public key of source A. Now similarly you can write for the PUB and PUB and PRB. It is understood. Okay, so private key of A, then we will get Y, something like this. Now here, so what will be the Z, value of Z? So Z is nothing but we can write something like this, that is encryption. अब देखो Y is the input for this stage. So encryption of Y with respect to the पब्लिक की ऑफ बी. अभी आप सेंडिंग साइड ही हैं, ध्यान रखिएगा, सेंडर ए ही सब कुछ हैंडल कर रहा है, बट आपने सेकेंड स्टेप पर यूज किया प्राइवेट की ऑफ बी. नाउ इट इज पॉसिबल केस बिकॉज सेंडर ए कैन हैव द पब्लिक की ऑफ अदर यूजर्स एंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो खुद का तो पब्लिक की रहेगा ही उसके पास, पब्लिक एंड प्राइवेट, बट अदर यूजर्स का भी पब्लिक की रह सकता है. देन इट इज पॉसिबल केस. सो और इन जनरल इसको अगर आप और एलोबरेट कर सकते हैं, देन यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस. वाई इज व्हाट, नथिंग बट, सो यहाँ पर मैंने ई मिस कर दिया. ओके, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं. सो Z is nothing but encryption. Now encryption of Y is what? Encryption of X comma PRA. Now comma complete encryption किसका है? This is the input for the Z stage and key is nothing but PUB. Now this is the Z. Easily we can check or see. Okay, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस की पेयर सोर्स जो भी यहाँ था, सेम लॉजिक की पेयर सोर्स आपको डेस्टिनेशन पर रखना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट और ये प्राइवेट की ए का पॉसिबल केस है, पब्लिक की ए यूज कर रहा है बी का, वो भी पॉसिबल केस है. नाउ एट द रिसीविंग एंड, once you will get the message or ciphertext. So this is basically ciphertext, final ciphertext. This is also a ciphertext, but this is the final ciphertext. Now, first, what we have to do? First, we want to recover this Y and after that Z. Okay, तो Y देखो किससे encrypted था? Private key से. Okay, तो यहाँ पर आपको private key of अगर आप पहले आप आउटर वाले को देखेंगे तो आउटर वाला था पब्लिक की ऑफ बी से. यू कैन इजीली चेक दिस वन. अब फॉर द फर्स्ट स्टेज फॉर रिकवरिंग और गेटिंग बैक दिस वाई डैश, मैं अब यहाँ वाई डैश कर देता हूँ, उसको वाई डैश कर लो आप चाहो तो, या वाई भी रख सकते हो, नो इश्यू, क्योंकि आप इसको वापस ही रिकवर कर रहे हैं. ओके, तो वाई इज व्हाट? डिक्रिप्शन of whatever you will have. Now Z you will have and with the help of private, because public key था, outer side public key था, तो इसलिए public key of B था, तो यहाँ पर private key of B यूज करना पड़ेगा, जो कि possible case है. क्यों? क्योंकि receiving side पर source B private key अपनी रख सकता है, इसके पास होगा ही होगा. Okay, after that for getting back the X, तो अब यहां देखो X जो आपने किया था दैट इज प्राइवेट की, वो प्राइवेट की से इंक्रिप्टेड था A के, तो आपको डेफिनेटली यहां पर पब्लिक की डिक्रिप्शन के लिए क्या करोगे? डिक्रिप्शन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा Y will be the input now, and for doing the decryption you must use the public key of A but at the receiving end. So public key of A, now it is also a possible case because मैं यहाँ लिख देता हूँ B can have public key of source A. So this is the possible case. So in this way we can perform a simple public key crypto system.
और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. Even you can check or even you can write the mathematical equation बोल दो या mathematical steps बोल सकते हो आप हर step पर लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा गया है. So this is the simple public key crypto system in dual mode. Single mode हमने कल देख लिया था. This is dual mode. Okay. Now this is the actual pictorial view. Now I am moving. Okay. Now we will talk about the crypto system with the use of the crypt analyst. कोई बताएगा crypt analyst का क्या meaning है और क्यों why I am using this thing again? Anyone? What is the role of crypt analyst? So to encrypt, I guess. Okay. To encrypt. Okay. Fine. देखो crypt analyst आप अगर normal language में बोलोगे तो crypt analyst को आप intruder भी बोल सकते हो. But not exactly the intruder. Crypt analyst is the somehow decent word than the intruder because crypt analyst का काम जो आपने अभी बोला वो ये तो है decipher का, ठीक है, but logical way में जाकर logical decipher means ये मानकर हम चलते हैं कि किसी भी सिस्टम किसी भी एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. देन व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स एंड अगर कोई इंट्रूडर या आउटसाइडर और अनऑथराइज्ड एंटिटी आता है तो वो किस तरीके से आपके मैसेज को डिसाइफर कर सकता है जो आप बोल रहे हैं. तो एन्क्रिप्शन ना बोल करके आप ये बोल सकते हैं कि डिक्रिप्ट भी मत बोलिए, टू गेट द मैसेज बैक. ओके. बट डिसाइफर एनक्रिप्शन ये सब भी बोल सकते हो आप, टर्मिनोलॉजीज हैं. तो बट why I am saying that this crypt analysis term is somehow decent than the intruder term because क्या होता है कई बार सिस्टम खुद भी क्रिप्ट एनालिस्ट रखता है अपने पास. जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आती है अगर तो चेक करने के लिए भी आपके सिस्टम में ऑथराइज्ड एनालिस्ट बैठा होगा जो कि ये चेक करेगा कि अगर कुछ ड्रॉबैक्स है या कोई की कॉम्प्रोमाइज होती है या कोई प्लेन टेक्स्ट पेयर कॉम्प्रोमाइज होता है देन उसको देयर कितना पॉसिबिलिटीज है कि हमारा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ठीक है. सो इन बोथ सेंस, good sense and the bad sense, we can use a word crypt analyst. Here we are talking about in the sense of the intruder. Okay. So for only this purpose we are using such, again we are discussing such kind of the diagram. Okay. So as we have seen, I hope that you are able to see whatever I'm writing again. So this is the message M and X आफ्टर द जनरेशन. अच्छा एक चीज बताएगा कोई, मैं यहाँ M लिख रहा हूँ देन यहाँ पर X जनरेट हो रहा है, सो डायरेक्ट M क्यों नहीं लिख रहा? व्हाई आई एम नॉट यूजिंग M? एनीवन? सर वो मैसेज प्राइवेट की ऑफ X से इंटरप्ट हो गया ना बस. नहीं इनक्रिप्ट तो दोस्त अभी इस स्टेज पर होगा. देखो ये जो डॉट मैंने बनाया या स्टार बनाया, इसके पहले तो ये X कहाँ से आ रहा है? मैसेज सोर्स से आ रहा है ना. अच्छा चलो मैं बताता हूँ. देखो जब भी हम बात करते हैं मैसेज की तो मैसेज में भी अगर जनरल वे में बात करोगे तो मैसेज आपका, अभी हम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप क्या करते हो? इंग्लिश को ही यूज करते हो. लेट्स से हेलो, दिस इज योर मैसेज. बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड
this English, Hindi, Arabic, Sanskrit, whatever, उसका खुद का एक लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। तो आपको किसी ना किसी तरीके से इस मैसेज को बिट पैटर्न में कन्वर्ट करना होगा, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, उसका एक बहुत, ये मैं जो अब बता रहा हूं वो केवल एक तरीका नहीं है, और भी मेथड होते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग टू यू द सिंपल थिंग। अच्छा, बताएगा कोई कि कैसे बिट पैटर्न में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको, मैसेज को? बहुत आसान तरीका है। Even though in the fetal structure in lab, fetal structure practical, we will see this thing also. देखो, कुछ नहीं करते, हमारे पास इन सभी की ASCII वैल्यू तो है, H, E, L, L and O। इन सभी ASCII वैल्यूज को मैं ऐड कर देता हूँ और एक बिट स्ट्रीम बना लेता हूँ। So now you are having, because ASCII value in decimal and easily you can convert decimal into binary. Now we are having a kind of the bit pattern. But in block cipher, if you can remember, in block cipher, there must be a plain text block. तो उसका कुछ साइज होगा। सपोज ये हेलो फॉर एग्जांपल 100 बिट्स में कन्वर्ट हुआ, फाइन। तो आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा 100 बिट का ही एक ब्लॉक साइफर बनाएंगे, जैसे कि DES या फीसल स्ट्रक्चर में देखा था। तो जनरली प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक का साइज जो होता है वो होता है 64 बिट्स। ओके, दिस। तो इन जनरल हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट मैसेज इज हैविंग M1, M2, M3 डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए यहाँ M आई एम जस्ट यूजिंग फॉर द रॉ डेटा एंड X is the processed data that we are directly using for the encryption or decryption purpose. तो ये X में भी 4 बिट का ब्लॉक साइफर हो सकता है, मे बी 2 बिट का हो सकता है, मे बी मोर देन 4 और 2 बिट हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिदम कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। That's why I'm using X here in place of M. M in the starting message and then X here. Okay, so now encryption, जैसा अभी आप बोल रहे थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, this is Y, जो आपने कहा था अभी कि Y, यहाँ encryption यहाँ नहीं होगा, encryption will be done in this block and after this we are getting the answer, that is Y, and encryption of say X, और किस की के साथ हुआ है? पब्लिक की ऑफ B. This is the mathematical equation for Y and it is possible case कि source A B का पब्लिक की रख सकता है, yes definitely रख सकता है, और एक ही जगह पर की पेयर आपने जनरेट कर दिया है, वहीं से पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसमिट कर दिया। ओके, नाउ दिस इज द चैनल, दिस इज चैनल, और इस चैनल के थ्रू हम हमारा साइफर टेक्स्ट ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम दी वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया, इट डिपेंड्स। और दिस इज द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम डेफिनेटली। अब आपको वापस से ये चाहिए तो देखो, वापस आपको x कब मिलेगा, क्योंकि y विल बी द इनपुट हियर। सो लॉजिक or the mathematical equation for X will be X equals to decryption of Y, because Y is the input for decryption process, and key, that is PRB, and private key of B। तो ये possible case है क्योंकि B अपना खुद का private key रख सकता है, so there will be no issue, no problem। So this is the ciphertext, then Y, then we will get back our message X। और फिर आपने जो भी X message यहाँ किया था in this form, suppose this is X in this form, then you can easily get back to the original message here, say capital M। So basically the issue is this X, so you are easily getting back the X message with the help of public key system, private and public key pair। ना अब हम यहां पर आते हैं,
जब भी आप चैनल के थ्रू, वैसे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज किसी भी एंड पर हो सकती है, बट हम ये मानकर चलते हैं कि सेंडिंग एंड और सेंडिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन, दे आर मोर लाइकली सिक्योर, क्योंकि यहाँ पर आपका डेटा फ्रीली मूव नहीं कर रहा है। बट चैनल को हम हमेशा, वी कंसीडर ऑलवेज दैट चैनल इज दी वल्नरेबल थिंग। तो सपोज यहाँ पर कोई इंट्रूडर है, अब मैं इसको डिफरेंट टर्म यूज कर रहा हूं। इंट्रूडर, एज आई टोल्ड यू दैट इंट्रूडर इज नॉट, this cryptanalyst is different than the intruder, but still I am using a term intruder। अब देखो, तो इंट्रूडर को, वो इस चैनल को डिटेक्ट कर सकता है, और एक और केस है, एक तो दिस इज द चैनल और अनदर केस इज दिस वन, कि क्रिप्ट एनालिस्ट डायरेक्टली जो की पेयर सोर्स आपने जनरेट किया, सो दिस इज ऑल्सो अ चैनल, जिसके थ्रू आप कीज को आप एक एंड से दूसरे एंड पर भेज रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ चैनल। ये भी कोई मीडियम होगा, इसको चैनल ना बोलकर अगर मैं मीडियम बोलता हूं, देन इट इज ओके। मीडियम बाय विच यू आर ट्रांसमिटिंग योर की। ओके, तो अब क्रिप्ट एनालिस्ट के पास प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है आपके मैसेज को डिसाइफर करने का, क्योंकि एक तो चैनल ओपन है, और चैनल फॉर साइफर टेक्स्ट एंड चैनल फॉर की, दिस इज ऑल्सो ओपन। तो अब इसके लिए होता क्या है कि डायरेक्टली तो क्रिप्ट एनालिस्ट नहीं कर सकता, बट दिस इज कॉल्ड द एस्टिमेटेड वैल्यूज। इन प्रीवियस लेक्चर्स आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एस्टिमेटेड वैल्यूज। मैं अभी इस सब को डिलीट कर रहा हूं, और यहां पर अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। सो दिस इज व्हाट estimated values of plain text, and this is what estimated values of private keys। देखो, जब भी मैं आई एम टेलिंग टू यू कि स्मार्ट इंट्रूडर, स्मार्ट क्रिप्ट एनालिस्ट वही है जो कि किसी लॉजिक के बेसिस पर ट्राई करे किसी सिस्टम को डिकोड करने का। ना लॉजिक क्या है, यहां से कुछ प्लेन टेक्स्ट गया सपोज, तो एक तो तरीका होता है कि जो भी प्लेन टेक्स्ट हमने डिजाइन किया था, M1 M2 डॉट 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 M3, फाइन, MN सपोज, आपने पहले M1 ट्रांसमिट किया, देन यू विल ट्रांसमिट M2, देन समथिंग लाइक दिस। अब सपोज करो कि इस क्रिप्ट एनालिस्ट के पास सभी मैसेजेस तो नहीं है, बट समहाउ he will able to find the plain text, let's say M2, M5 and M7। ओके, सपोज इसने इसको कर लिया। अब ये this crypt analyst can make a prediction, okay, can make a prediction कि M3 क्या हो सकता है, M4 क्या हो सकता है, और M6 या M8 क्या हो सकता है। इट इज जस्ट प्रिडिक्शन। अगर मैं एस्टिमेटेड वैल्यूज को अगर टेक्निकल टर्म में है, तो इसका नॉन टेक्निकल वर्ड आप ये बोल सकते हैं प्रिडिक्शन। तो क्रिप्ट एनालिस्ट क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द डेटाबेस, प्रीवियस डेटाबेस। कुछ तो पहले ट्रांसमिट करने के बाद में कुछ उसने somehow he managed to having the previous databases। Now similarly the same thing for the key purpose, private key estimation। अब यहां से देखो, आपने कुछ जनरेट किए प्राइवेट और पब्लिक कीज, तो इस पब्लिक की जितने भी ट्रांसमिट किया, सपोज उसके पास PU1 PUB1 है, PUB3 है, PUB4 है, और इट माइट ऑल्सो पॉसिबल कि क्रिप्ट एनालिस्ट ने किसी तरीके से PRB1 और PRB
2 भी डिटेक्ट कर लिया। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस डेटाबेस, जो कि उसने कलेक्ट किया है या प्रीवियस डेटाबेसेस का एनालिसिस करके किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ एक ही बार एक ही तरीके के मैसेज के लिए यूज होगा। आपने इस मैसेज के लिए भी इसको यूज किया, अब नेक्स्ट मैसेज ये भी हो सकता है डॉट 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 nm। तो अगर ये फर्स्ट टाइम किया था तो इससे जो आंसर रिजल्ट आया उसने किसी तरीके से एनालिसिस कर लिया, और नाउ इफ he or she is sure that you are going to use the same algorithm for the next different kind of the plain text message, तब फिर ये डेटाबेस उसके पास मेंटेन हो सकता है, इट इज पॉसिबल केस। तब फिर वो क्या करेगा कि he will try to predict, ओके, कि अगर 1 था तो सेकंड पब्लिक की या थर्ड पब्लिक प्राइवेट की क्या हो सकती है, फोर्थ प्राइवेट की क्या हो सकती है। देखो पब्लिक की इसलिए नहीं यूज मैं बोल रहा हूं क्योंकि पब्लिक की तो पब्लिक होती है, अगर वो चाहो तो इजीली यू कैन गेट, बट वंस यू विल हैव द प्राइवेट की देन यू विल हैव द कंप्लीट अथॉरिटी टू डिक्रिप्ट योर साइफर टेक्स्ट, बिकॉज ये पेयर में यूज होते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ द प्रिडिक्शन। तो ये सारा कुछ प्रिडिक्शन बेस्ड होता है। सो दिस इज एस्टिमेटेड लॉजिकल मेथड के थ्रू होता है, और इसका लॉजिक ये है, इवन आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस कंप्लीट थ्योरी ऑफ क्रिप्ट एनालिस्ट। देखो एक तो तरीका है कि प्लेन टेक्स्ट पेयर का डेटाबेस है उसके पास, एक तरीका है साइफर टेक्स्ट पेयर का डेटाबेस है। अच्छा इसका एक एग्जांपल देख करके करते हैं। सपोज ए is going to replaced, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ए डी से रिप्लेस हो रहा है, बी ई से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल लॉजिक है, इतना आसान होता नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब क्या मुझे बताओगे, अच्छा मैं एक और ले लेता हूं, सी जो है सी डी डी ई एफ, ओके एफ से हो रहा है, फाइन। अच्छा अब मुझे बताओगे कि एम किस से रिप्लेस होगा, एनीवन? अरे कहाँ चले गए, भाग गए क्या सारे? सर पी। किससे? पी से। अच्छा मैं पी लिख देता हूं। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये करेक्ट है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे कि ये वाई? आपको तो पता नहीं था मैंने क्या की यूज किया, क्या एल्गोरिदम यूज किया, बट स्टिल यू आर एबल टू फाइंड। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये है कि आपके पास एक पुराना डेटाबेस था जिसको आपने रीड किया और एनालाइज किया, और उसके बेसिस पर आपने एक प्रिडिक्शन किया। ठीक है, तो उस प्रिडिक्शन, वो प्रिडिक्शन जितने ज्यादा आपके पेयर्स प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर होंगे, या सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पेयर, या साइफर टेक्स्ट पेयर होगा, तो उस जितने ज्यादा डेटाबेस होगा उतना ज्यादा आपका प्रिडिक्शन कंफर्म होगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपने जो आंसर दिया उसके पहले आपको नहीं पता था मैंने सीजर साइफर यूज किया है या क्या की यूज किया है, नो, बट आपने प्रिडिक्शन किया और आंसर आ गया। तो ये क्रिप्ट एनालिस्ट का लॉजिकल बिहेवियर होता है, इस तरीके से ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल लॉजिक ऑफ द क्रिप्ट एनालिस्ट केस along with the public key system। तो और यही जो भी यहाँ पर लॉजिक है वो सेम थिंग थर्ड केस की पेयर के लिए भी लग सकता है, कि अगर आपके सिस्टम में यू आर यूजिंग 16 पेयर, और उस आउट ऑफ 16 अगर किसी तरीके से 4 पेयर्स आपको पता है, तो आप रेस्ट 12 का प्रिडिक्शन कर सकते हो। वो सही कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ क्रिप्ट एनालिस्ट। Okay, so this is the thing, and after this
I am again moving. Okay. Now this is the authentication in public key crypto system. So authentication separately we have talked about like this one. So this is simple. यहाँ पर हमने किसी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच की बात नहीं किया था. अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का, और इजीली यू कैन इवन check or you can have the thing that authentication, as I told you, अब बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है. प्राइवेट की आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक की को आप डिक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग पब्लिक की. मैसेज इज एम. ओके, मैं ग्लास बोर्ड फिर भी फिट कर ही लेता हूँ. ओके, सो दिस इज नथिंग बट मैसेज. अभी दिख रहा है ना जो लिख रहा हूं मैं? यस सर. ठीक है. So the same message, so same logic. ये X encryption with the help of private key. This is private key. So as I told you, why we are calling it authentication? क्योंकि receiving side पर अब ये confirm हो गया है कि decryption सिर्फ और सिर्फ A के public key से ही हो सकता है. तो पहली चीज, जितने भी authorized user है सभी के पास public key होगा, और उनमें से कोई भी अगर इसको, ये ब्रॉडकास्टिंग आप ऑथेंटिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया. कोई भी इस मैसेज को अगर डिकोड करता है, सपोज बी के अलावा भी करता है, तो वो पब्लिक की ऑफ ए से उसको डिक्रिप्ट कर सकता है. तब क्लेम यही होगा कि भाई ये ए ने ही सेंड किया है. बट सपोज ए ने सिर्फ बी के लिए सेंड किया था और सपोज सी ने किसी तरीके से डिक्रिप्ट कर भी लिया, तो जब सी उसको एक्नॉलेज करेगा ए को, देन ए विल से कि नो, दिस मैसेज नॉट फॉर यू. ठीक है, वो दोबारा से मैसेज सेंड कर देगा. सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस दैट हैंडल्स ओनली ऑथेंटिकेशन, नॉट एनक्रिप्शन. और जब आप एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों प्रोसेस को मर्ज कर देते हैं, तब आपका कंप्लीट सिस्टम बन जाता है. बट वही चीज यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए क्रिप्ट एनालिस्ट को जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्राइवेट की का. सिंपल, बस यही रिक्वायरमेंट है. अगर किसी भी तरीके से उसने इसको जनरेट कर लिया है या एस्टिमेशन कर लिया है प्रॉपरली, देन वो इसमें सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है. सो दिस इज द सिंपल केस ऑफ ऑथेंटिकेशन इन पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम. देखो, क्रिप्टो सिस्टम मतलब क्रिप्ट एनालिस्ट भी इंक्लूड है, तब आप बना रहे हैं. और आप यहाँ से देख सकते हो कि क्रिप्ट एनालिस्ट के पास दो तरीके हैं. एक तो चैनल को रीड कर सकता है, दूसरा इस मीडियम या चैनल जिसके थ्रू की पास हो रहा है. तो क्योंकि ये बोथ आर दी ओपन केस, so this is the authentication process. Okay, now I am ending this glass board, closing this glass board. Okay, so we have talked about the basic thing. Even we have not discussed about the signature thing of public key system, वो हम आगे देखेंगे. But we have talked about the encryption and authentication process with the help of key pair or with the in public key cryptography. And what is the role of crypt analyst in a public key cryptography when you are doing encryption or you are doing authentication. After this, if we will move, so यहाँ पर लिखा हुआ है simple कि public key crypto system source side is denoted with a something like this. मैं इसको read नहीं कर रहा हूँ, वो सारा कुछ हमने देख लिया है. और PUB and PRB, this one private और public key को बोला जाता है. कैटेगराइज ऑफ एप्लीकेशन कल हमने देखा था एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, जो कि सीक्रेसी और डेटा प्रोवाइड कराता है ज्यादा. अच्छा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, एक सवाल ये भी आता है कि तो कि सिमेट्रिक एनक्रिप्शन की इज गॉन, दैट वी आर यूजिंग ओनली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ है क्या? सर वाईफाई में कभी-कभी मतलब होती है WPA, उसमें यूज होती है सिमेट्री कीज. ओके,
अच्छा, तो मैं अब आपको एक बात बता देता हूं कि सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन इज मोर सिक्योर देन द पब्लिक की सिस्टम. The thing is this, but for handling the bigger network, public key is the requirement. Okay, तो सिमेट्रिक की सिस्टम कभी वैनिश नहीं होने वाला है. सिमेट्रिक की और कन्वेंशनल की मेथड वो हमेशा रहेगा. नाउ along of this we will use public key at certain points, जैसा आप बोल रहे हैं कि जिस जगह पर बहुत सारे यूजर्स हैं, you have to handle those users. थर्ड पार्टी इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि आप कनेक्शन लेते हैं, सपोज BSNL का मॉडम आ गया, अब थर्ड पार्टी वेंडर भी होगा, थर्ड पार्टी भी होगी, समथिंग लाइक दिस. तो उस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पब्लिक की से सिक्योरिटी दिया जाता है. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि पब्लिक की का सिक्योरिटी हमेशा खराब है. कुछ जगह पर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज मोर सिक्योर देन सिमेट्रिक वन, बट ओवरऑल सिमेट्रिक की इज द मोर सिक्योर, क्योंकि उसमें एक ही की यूज करते हो. अगर वो किसी तरीके से आप उसको कॉम्प्रोमाइज होने से सेव कर लेते हो, देन देयर विल बी नो चांस ऑफ मींस ऑफ गेटिंग चीटेड. तो पब्लिक की में 2 की होती है तो उसके कॉम्प्रोमाइज होने के चांस ज्यादा है, बट उसका एडवांटेज कुछ अलग वे में है. तो इसलिए वो दोनों जरूरी है, दोनों सिक्योर है. तो पब्लिक की को के साथ में सिमेट्रिक की हमेशा यूज होती ही होती है कुछ पॉइंट्स पर. और इन जनरल आप बोल सकते हो कि फॉर हैंडलिंग द बिगर नेटवर्क, दैट्स व्हाई पब्लिक की वाज इंट्रोड्यूस्ड. और की डिस्ट्रीब्यूशन भी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की डिस्ट्रीब्यूशन. तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यहाँ लिखा जरूर है फॉर सीक्रेसी ऑफ डेटा, क्योंकि ये ट्रू है पब्लिक की के लिए भी और सिमेट्रिक के लिए भी, बट पब्लिक की के लिए हम पढ़ रहे हैं इसलिए ये पॉइंट वैलिड है. ऑथेंटिकेशन एंड डिजिटल, हाँ ये एक पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर का वहां पर कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक ही की यूज कर रहे हो आप, और कोई प्रोविजन भी इतना ज्यादा नहीं होता है सिमेट्रिक में. ये एक मेजर एडवांटेज हो सकता है पब्लिक की को यूज करने का. और थर्ड मेजर एडवांटेज है की अनाउंसमेंट या की एक्सचेंज और की डिस्ट्रीब्यूशन, समथिंग लाइक दिस. तो की डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से की जाती है इस पर हम देखेंगे, क्योंकि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमने देख लिया. ऑथेंटिकेशन डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक ये उसके बाद देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी द एल्गोरिथम लाइक RSA, क्योंकि ये RSA को आप डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज करते हो, और इस RSA को हम मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द RSA एंड देन authentication, different algorithms, MAC, hash and digital signature, something like this. So I'm done for today. टाइम भी लगभग हो चुका है, ठीक है. तो I'm stopping the sharing. Anyone is having any doubt or anything, if you want to ask then you may ask, otherwise it is okay from my side. कल क्या करना है वो मैंने बता दिया. सर सिमेट्रिक की ज्यादा मतलब वल्नरेबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल वल्नरेबल है, बिल्कुल वल्नरेबल है. बट प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कहा ना, एक स्टेटमेंट को अगर आप चेक करते हैं, सपोज मैं ये बताता हूं आपको, शायद पीपीटी वापस दिख रहा होगा. यस सर. देखो सिमेट्री की वल्नरेबल भी है, बट अब आप यहाँ देखो, किसी तरीके से अगर आपने इस की को, ये जो की सोर्स से जनरेट हुआ है ना, इसको कॉम्प्रोमाइज होने से बचा लेते हो, ठीक है. तो यहाँ देखो क्रिप्ट एनालिस्ट के पास वो सिर्फ एक ही ओपन मीडियम को वो रीड कर रहा है, वो इसको रीड नहीं कर रहा है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो की वाला पार्ट है सिमेट्रिक की में, वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, और वो सिक्योर चैनल सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन और रिसीवर को, जो डेस्टिनेशन और सेंडर को ही मालूम है. तो अगर आप इसको किसी तरीके से सेव कर लेते हो, देन इट इज वेरी मच सिक्योर एल्गोरिथम. क्रिप्ट एनालिस्ट के लिए भी प्रॉब्लम होगी, बट हाँ इसको करना पड़ेगा. द कंडीशन इज दिस, अदरवाइज इट इज वल्नरेबल, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल.
अगर तभी 8 बिट हाँ, का हो तो उसमें दिक्कत आएगी, वो बंदा ब्रूट फोर्स करके उसको नहीं एक्सेस कर। ब्रूट फोर्स तो इसीलिए तो हम की का लेंथ हमने डिस्कस किया था जब आइडियल ब्लॉक साइफर में देखा था। तो की का लेंथ जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा की का लेंथ, उतना आपको ब्रूट फोर्स में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था सीजर साइफर का, नाम मैंने नहीं बताया था बट आपने इमीडिएटली बता दिया कि एम पी से हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ और लॉजिक लगा देता हूँ, सेम वही लॉजिक, उसमें मैं यहाँ ग्लास बोर्ड एंटर करता हूँ और मैं सपोज मैंने ये लॉजिक लगा दिया जो सिंपल सीजर साइफर का लॉजिक है भी, p+3 एंड मॉड ऑफ लेट्स से 26। अब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, अब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी क्योंकि अब ये आपने साइक्लिक मोड में चले गए, ठीक है। बट यहाँ स्टिल आप कर सकते क्योंकि की का साइज सिर्फ 3 ही है यहाँ। अब DES में क्या होता है, जो हमने फिस्टल स्ट्रक्चर के बाद देखा था, उसमें प्लेन टेक्स्ट का साइज 64 है और की का साइज भी 64 एटलीस्ट होता ही है। तो अब खुद से सोचो, अगर मैं आइडियल ब्लॉक साइफर की बात करूंगा ना, तो देखो कितना की होगा, 64 टू रेज टू द पावर 64। ये आइडियल केस है, आइडियल केस की साइज फॉर 64 बिट प्लेन टेक्स्ट। तो अब ब्रूट फोर्स कितना लगाओगे। बट अगर आपका DES है, 64 भी है, तब भी ये बहुत ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ब्रूट फोर्स से काम नहीं चलेगा। तो आपका की साइज और प्लेन टेक्स्ट साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल है या नहीं। अदरवाइज तो कई ईयर्स भी लग सकते हैं। अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करता हूं और DES को, जो AES एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो आप, नेट बैंकिंग में हम यूज करते हैं, तो उसके लिए कुछ 10 टू द पावर 15 या 16 इयर्स समथिंग लाइक दिस ऐसे आता है ब्रूट फोर्स के। तो इतना तो बहुत है। ब्रूट फोर्स इज नॉट द इंटेलिजेंट टेक्निक। यस ठीक, ओके okay, so now I am stopping the sharing. Still anyone is having any doubt, पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं एंड करता हूँ बिकॉज अब जरूर टाइम हो गया है। ये लाइसेंस कोई और फैकल्टी यूज करेगा क्योंकि। ओके, सो थैंक यू। अगर हो डाउट है तो नेक्स्ट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।